हेलो एवरीवन। एनलाइटनमेंट 8.0 के डे 2 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल के हमारे सेशन में हमने सीखा कि कैसे हम खुद को और भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं और खुद में बदलाव ला सकते हैं। और उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा डे 2 का टॉपिक है अनलॉकिंग इनर पोटेंशियल, जिसको एड्रेस करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर दिवेश भंडारी सर। सर, आपने पिछले 10 साल से मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया है। आपने अपनी एमए की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूनाइटेड किंगडम से की है। आप इम्ब्रोग्लियो प्रोडक्शंस के डायरेक्टर भी हैं। आपने अपने जीवन में काफ़ी सारे लोगों को एनलाइटन भी किया है। और इस सेशन की शुरुआत से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग पेन और डायरी लेकर बैठें, अपनी आईडी पर अपना रियल नाम सेट करें और अपना कैमरा ऑन करके सर का स्वागत करें। सर, आपका जेईसीआरसी फाउंडेशन और यहाँ प्रेजेंट सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर दिवेश भंडारी सर टू फर्दर कंटिन्यू दिस सेशन। Thank you so much. Thank you so much for that warm welcome. And a very, very good evening to everyone who has joined us for this session. What is your preferred language? सभी के लिए मतलब what is the preferred language? Do you all prefer Hindi, English or mix? Does everyone prefer mix या Hindi, English या only Hindi or only English? I think introduction हिंदी में हुआ तो definitely हिंदी तो चाहिए सभी को. English only. हिंदी हिंदी I think yes, I think generally सभी का English, yeah. चलो, we'll go with English, we'll go with mixed language session. All right. So it's great that there is a university who's conducting such sessions, because we work a lot with schools across the country, a lot with colleges across the country, और हम देखते हैं कि ऐसे सेशंस की कितनी जरूरत है आजकल के लोगों को, आजकल के युवा को कितनी जरूरत है ऐसे सेशंस की, बिकॉज somewhere there is something that is lacking, which is not helping us reach where we want to, है ना? बहुत बार in 99.9% of the cases, what I have been seeing around me is that people know where they need to get to. सबको मालूम है कहाँ उनको पहुंचना है. बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि लोगों को मालूम नहीं चलता है कि उनको कहाँ पहुंचना है. But the problem is we don't know how to get there. And the problem is the lack of faith in ourselves कि क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ. That's also a big problem of self-doubt that I've seen a lot of college students have, at least the ones I've been interacting with of late. So today's topic, of course, is got a notification. Yeah. So today's topic is about realizing our inner potential, right? So first of all, I want to ask everyone this question. Start off by asking everyone this question: कि how many of us feel, कितनों को ये मालूम है कि हमारा inner potential कहाँ तक है? Do we know where and what level our inner potential is at? How many of you all feel ki yes, we know? It's a yes or no question. Yes, we know where our inner potential is, or no? Okay, I can see a lot of no's coming in. Yes, one or two yeses, a lot of no's coming in, that we don't know what our inner potential is. Right? Right? Awesome. Okay, thank you for those answers. See, it's very important for us to realize, first of all, is self-belief. If you all have notebooks and pens, you all can write this, कि सबसे पहला है self-belief. Having faith and trusting yourself, right? Potential starts with, अगर आप लोग science background से हो, I'm assuming, I'm assuming that all of us are from mixed backgrounds and mixed streams, and maybe science, commerce, arts, humanities, अलग-अलग background के students यहाँ पर होंगे, I'm guessing. And people might understand potential as in the word, yes, science background se hai kafi log, and understand potential energy and things like that. So yes, potential has a lot to do with energy. And the first thing to believe is that we have infinite potential energy. Infinite potential energy, right?
There's no limit to what we can achieve or where we can get to. There's absolutely no limit. And kabhi kabhi, when you look at circumstances around you, when you look at some, paristithiyan, when you look at some sort of a context, तब ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है. This is not something that I can achieve. Be it as small as clearing your exam next week, or writing an assignment and things like that. It may seem difficult at first, but when you start cracking it, when you start breaking it down, when you start getting to the task and start doing it step by step, बहुत बार ऐसा होता है कि अरे मेरे को तो मालूम नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. होता है ना ऐसा बहुत बार. वी फील दैट अरे मालूम ही नहीं था कि हम ऐसा मैंने ये किया है. ऐसा फील ही नहीं हुआ कि अरे ये तो मैंने किया, ये तो मैं हुई नहीं, या मेरे में तो ये क्षमता ही नहीं थी. वी हियर दीज काइंड ऑफ थिंग्स अ लॉट. So there are two things that we need to realize with the word potential, first of all. The second part is how do we unlock our full potential, or how do we get to the best version of ourselves, and especially with the new year coming in. तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. देखो, there is no set of there's no sort of a rule book that there is available कि यही करना चाहिए और ऐसा करने से आप इस रास्ते पे पहुंच जाओगे, because everyone's situation is different. Everyone's context is different. Everyone's family backgrounds, economical background, social background, emotional potential, सबका अलग अलग होता है. तो एक मंत्र सबके लिए है ऐसा तो है नहीं. But yes, there are set of frameworks that you can use so that in spite and despite of all your problems and मुश्किलें, you can still get to where you want to get to. So there are 2-3 things we will get to in just a bit. But first, I want you to understand two words. One is the word infinite, and second is the word innate. Right? Innate, INNATE. So one, we were talking about how we have infinite potential. There is no limit to what we can achieve. Why is it that, say, an Elon Musk or another person can achieve what he or she is achieving and I cannot? ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी अलग तरीके से भगवान ने बनाया है और हमको किसी अलग तरीके से भगवान ने बनाया है. राइट? इट्स नॉट दैट. इट इज जस्ट दैट दे हैव रियलाइज्ड देयर पोटेंशियल बेटर देन अस. It also may be the case that there is a more opportunity that he or she has received, and hence he or she has been able to achieve what he or she has been able to achieve. But that does not mean that we wait for opportunities to come our way and not start trying or working towards achieving our full potential. So the first thing is infinite. We need to believe the first step to achieving, or the first step to getting to where we have to get to, जहां हमको पहुंचना है, जो उसका पहला कदम है, वो है ये समझना कि मेरे में इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी है. मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अंत नहीं है. राइट? इतनी हमारे में पोटेंशियल एनर्जी है. एंड द सेकेंड वर्ड इज इननेट. है ना, कि ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है. ये सूरज की किरणों से तो हमको नहीं मिल रही है, या कोई हाइड्रो पावर डैम से या कहीं से तो ये एनर्जी हमारे पास नहीं आ रही है. ये एनर्जी हमारे अंदर नेचुरली है. राइट? राइट? ऑलरेडी हमारे अंदर ये एनर्जी मौजूद है. बट इस एनर्जी को हम किस तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं. राइट? इस एनर्जी को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं. अगर आप एक दिन में भी देखोगे, फॉरगेट अबाउट व्हाट आर लाइफ गोल्स हैं और हमको कहाँ लाइफ में पहुंचना है, जिंदगी में क्या बनना है, कुछ करके दिखाना है, वो सब ओके, सेकेंडरी. आज के दिन में इफ वी टेक वी गोना डू सम सेल्फ रिफ्लेक्शन. आज के दिन में हमने अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट करी. राइट? कैन ऑल ऑफ अस टेक 1 मिनट, है ना, 1 मिनट लेकर के हम जस्ट सोचेंगे, हम सुबह उठे, हमने क्या किया, कब नाश्ता किया, उसके बाद क्या पढ़ाई करी, कितने टाइम बैठ के फोन देखा, कितने टाइम इंस्टाग्राम पे थे, कितने टाइम फेसबुक पे थे, कितने टाइम यूट्यूब पे थे, कितने टाइम हम सोए, कितना टाइम. आज के दिन कितने लोग सेटिस्फाइड हैं कि आज के दिन मैं जितना कर सकता था या कर सकती थी मैंने किया. कि आज के दिन में मैं 1 मिनट भी और कुछ काम जो मैं करना चाहती थी या जो मेरे लिस्ट में है वो मैं नहीं कर पाता या नहीं कर पाती.
Not satisfied, right? Right? What do you all feel like? You all can let's make this like a two-way communication, between us. Not satisfied. One or two are saying satisfied, not satisfied, not satisfied. तो हमको ये तो पता है कि हम नॉट सेटिस्फाइड हैं, एटलीस्ट मेजोरिटी आंसर्स जो मिल रहे हैं नॉट सेटिस्फाइड हैं, तो हमको प्रॉब्लम तो पता है कि हमने अपनी पोटेंशियल रीच नहीं करी, राइट? ये पोटेंशियल रीच नहीं करी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे को पोटेंशियल रीच करनी है, देन देर इज एन अदर वर्ड दैट आई नीड टू रियलाइज, विच इज कॉल्ड दृढ़ता। हिंदी में आपने सुना होगा ना द वर्ड दृढ़ता। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड, एक बहुत अच्छा शब्द है। उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में तो हम क्या करेंगे, नो व्हेन यू हैव लाइक दैट ब्रवाडो, व्हेन यू हैव दैट करेज एंड यू डोंट गिव अप। तो ये दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, यस, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए, आज के दिन अगर मुझे ये अचीव करना है तो मतलब करना है। I'll tell you a personal example from my life. 2017 से लेकर के आज तक आई एम वेरी गुड विद टेक्नोलॉजी। मैं सारे एप्स यूज करता हूँ, आई एम गुड विद टेक्नोलॉजी, बट इवन देन, राइट, हाँ, आई टेल यू हाउ टू यूज द इनर पावर एंड ऑल ऑफ दैट। आज भी मैं अपनी प्लानिंग मैन्युअली करता हूँ। मेरे को कल सुबह कितनी बजे उठना है, कल सुबह उठ के मुझे क्या पहले करना है, क्या चीजें मुझे अचीव करनी है, मेरी मीटिंग्स कहाँ पे है, कहाँ मेरे को जाना है, मेरा ट्रैवल टाइम कैसे मेरे को यूज करना है, कितनी बजे मेरे को एक्सरसाइज करना है, कितनी बजे मेरे को कितना पानी पीना है, क्या मेरे को खाना है, कैसे मेरे को सोना है, सोने के पहले मेरे थॉट्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज का प्लान आई मेक एवरी डे। इट्स अ हैबिट, इट्स अ हैबिट। एंड आई टेल यू, आई एम टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना काम आप पूरे दिन में 4 से 6 या 4 से 7 के बीच में कर सकते हो ना, उतना काम आप पूरे दिन में नहीं अचीव कर सकते हो। when you have to study, when you have to make presentations, when you have to complete assignments, when you have to go for an exam, prepare for a meeting, ये सारा काम, बिकॉज सी 8:30-9 बजे के बाद नाश्ता करना है, कॉलेज भागना है, फिर कॉलेज में तो पूरे दिन के लेक्चर्स और वहां का रूटीन और दिनचर्या होती है। देन यू कम बैक, यू ऑलरेडी एग्जॉस्टेड योर एनर्जी, शाम को आप थके हुए आते हो, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, फिर थोड़ी देर सोए, थोड़ी देर खाया, 12-1 बजे तक आधे मन से आधे थकी हुई हालत में अपने काम किया, राइट? राइट, या समवन हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सोने से पहले क्या सोचना चाहिए। आई विल टेल यू दैट आल्सो, कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स वी शुड हैव व्हेन वी वेक अप एंड बिफोर वी स्लीप, राइट? सो देन द डे इज गॉन, पूरा दिन तो निकल गया, हमने क्या किया, है ना? एक बहुत अच्छा गाना है, तूने रात गवाई सो के और दिन गवाया खा के। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना यार, पता नहीं कब सुबह हुई और कब शाम हुई, पूरा दिन ही निकल गया, किया तो क्या किया, राइट? किया तो क्या किया, ये बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं दिमाग में। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, आज मेरे को 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं अपने पढ़ाई के, और दो भी नहीं, 2 चैप्टर भी नहीं होते हैं, फिर क्या करो, हाउ डू यू रीवर्क योर स्केड्यूलिंग? देखो, ऐसा नहीं है कि आप प्लान बनाओगे तो 90% भी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस प्लान से स्टिक नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज कितनी सारी अलग चीजें होती है, कितनी सारी चीजें अचानक आती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम अप सडनली, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डू, एंड देयर इज, कहीं जाना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है, कभी कोई हॉस्पिटल में उसको अटेंड करना पड़ता है, कोई पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं, कितनी सारी चीजें होती है जो हमारे स्केड्यूल के अंदर एक सॉर्ट ऑफ अ डिस्टर्बेंस बनती है, बट दे आर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर फैमिली, फॉर सेल्फ, दैट यू नीड टू अचीव, राइट? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जितने भी टॉप लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अचीव किया है, सो कॉल्ड सब कुछ अचीव किया है, उन्होंने भी इसी 24 आवर्स को यूज करते हुए किया है। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट टाइम, एंड एवरीवन्स टाइम टेबल इज डिफरेंट, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल अलग होता है, आपका, सम पीपल से कि हम रात को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमारा माइंड रात को बहुत एक्टिव होता है। सम, मैं बचपन से ही आई हैव बीन अ मॉर्निंग पर्सन, एंड आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो बोर्डिंग स्कूल में हम लोग जब पढ़ाई करते थे और हमारे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होते थे, तो मेरे दोस्त सारे 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते थे, और मेरे को उस समय उठा के फिर वो सोने जाते थे। आई कुड नॉट स्टडी लेट,
आई कुड ओनली स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग. बट मैंने धीरे 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 वो रियलाइज किया, तो जल्दी जल्दी उठने का जैसे कि एक संस्कार बन गया. So now naturally I am waking up at 4 o'clock, 4:30, and then by 7, 7:30 I finished my presentations for the day. I finished the planning for my meeting for the day. And I feel वो time जो होता है is the golden hour of the day. जो आपके पूरे दिन का जैसे कि एक की नोट सेट कर देता है. राइट राइट, एक पूरे दिन का sort of you get so much energy that you're able to sustain through the entire day very well. तो हमको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि वी हैव इनफाइनाइट inner potential and we have innate inner potential. That potential lies within me. हमको और कहीं से भी एक्सक्यूज मी, हमको और कहीं से भी ये पोटेंशियल मिलने नहीं वाली है. एंड वी नीड टू स्टॉप गेटिंग इनटू द हैबिट की ऑफ कोर्स वी नीड टू बी इंस्पायर्ड. दूसरों से हमको इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है, दूसरों से हम मोटिवेट होते हैं, दूसरों से हमको सीख मिलती है, सीख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. बट यू कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. Right, you cannot be dependent on other people to constantly motivate you, to constantly inspire you for your daily tasks. कि चलो भाई उठ के पढ़ ले, चल भाई उठ के असाइनमेंट कर ले, चल भाई ये कर ले वो कर ले. ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम हमको अपने फ्रेंड्स की जरूरत होती है, फैमिली की जरूरत होती है, और उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं. दैट इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट. Right, we are social animals and we need to be sustained in a community, in a society. That is perfectly all right. But what I am talking about it, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब तक किसी को पूरा धक्का नहीं दो तब तक वो काम करने के लिए वो तैयार ही नहीं होता है. और फिर क्या होता है, वो धीरे 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 आदत बन जाती है. राइट, धीरे धीरे वो आदत बन जाती है. So we need to realize that we have infinite potential and we have innate potential. Now coming to the point of how do we realize कि मेरी potential, what is the best version I can create out of myself? What is the best version or the maximum potential? अभी किसी कार की स्पीड होती है, एक लिमिट की स्पीड से 120, 150, 180 सी वो ज्यादा वो नहीं जा सकती है. पुरानी गाड़ी होगी तो और कम. तो मुझे कैसे ये पता चले कि मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, मेरी जिंदगी की गाड़ी मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है कि नहीं चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, कितना मैं एक्सेलरेटर दबा सकता हूँ, कितना गियर चेंज कर सकता हूँ. वी नीड टू रियलाइज दिस कि हमारा पोटेंशियल क्या है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारा पोटेंशियल ये है कि हम मेरे को 100 में से 100 नंबर लाने कल की केमिस्ट्री टेस्ट में, मेरे को 100 में से 100 नंबर लाने मेरी मैथ्स की टेस्ट में. ऑफ कोर्स दोज आर गोल्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स जो हमारे सर्टिफिकेट्स में रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारे मार्क्स में रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारे रेज्यूमे में जाता है. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट achievements that are necessary. But I am talking about something more deeper. I am talking about क्या मैंने अपना बेस्ट करके जो भी रिजल्ट आई मेरी, क्या वो मैंने अपना बेस्ट करके फिर अचीव किया, या फिर वो मेरी रिजल्ट आई. सपोज आई गॉट 70%. डिड आई डू माई 100% बेस्ट? एम आई सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ दैट मैंने अपना बेस्ट किया, तब जाके मुझे सिर्फ 70% मिलेंगे. दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. बट वेन यू गेट 70% एंड यू रियलाइज कि अरे मैं और भी बहुत अच्छा कर सकता था अगर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, अगर मैं उस दिन को अच्छी तरह से यूज करता, अगर मैं अच्छी बेटर प्लानिंग करता, दैट वो जो गिल्ट होता है, वो जो एक फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी अनसेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ होती है, वो फिर आपको और नीचे खींचती है. वो फिर आपको और नीचे खींचते हुए एंड देन यू फील अरे छोड़ो अभी, देन यू बीटिंग योर सेल्फ अप विद गिल्ट. है ना, एक जो पश्चाताप होता है, एक जो आत्मग्लानि होती है कि अरे काश मैं कर लेता, और काश मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करता. दैट इज वर्स, राइट, देन गेटिंग 75% और 70% एंड बीइंग हैप्पी विथ योरसेल्फ कि मैंने अपना बेस्ट करके ये 75% मेरे को मिला.
That is realizing inner potential. That is unlocking your inner potential, right? तो पोटेंशियल सब में सेम है. पोटेंशियल हर हर बच्चे की, no matter where or which background or caste, creed, race, religion, whatever background he or she comes from, whichever part in the world he or she comes from, right? Potential is the same. It is about realizing the potential. It is about realizing your true self and realizing that potential and then activating that potential, working towards it. तो क्या क्या हम कर सकते हैं कि हम अपना पोटेंशियल रियलाइज करें? ऐसे क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल, जो कितने लोगों ने बोला ना वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो ये जो नॉट सेटिस्फाइड को लेकर के हम अपने फुल पोटेंशियल तक रीच कर सके, उसके लिए क्या स्टेप्स हमको करने? एक तो ये समय बहुत अच्छा है. व्हाई? बिकॉज द न्यू ईयर इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, राइट? द न्यू ईयर इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एंड वी नीड टू क्रिएट अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों बनाएं, जनवरी निकल जाएगा, फरवरी तक तो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन को भूल भी जाएंगे. लेकिन नहीं. सी, इवन टिल डेट आई क्रिएट अ गोल फॉर माई सेल्फ एंड आई एम टेलिंग यू दिस विद लॉट ऑफ ऑनेस्टी. आई हर साल के लिए मेरा एक गोल होता है. हर साल मैं उस गोल की चेकिंग करता हूं कि क्या मैंने इस गोल पे मैंने, इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज, फॉर मी आई टेल यू, it is as simple as drinking more water, right? So now I'm realizing that I've not been drinking enough water, and because of that I'm having certain problems, so I need to just drink more water. It can be something, it can be a goal that is as simple as drinking more water, using my time better, planning better, waking up early, eating healthy, exercising a lot more, sleeping early, reducing my time on Instagram, social media if it's not necessary. Just these basic things will help you reach your full potential very easily and also very fast. तो अपने आप के लिए आप एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज बना सकते हो. जो ये बोलते हैं ना आजकल अपन 21 डे चैलेंज लेते हैं, तो जनवरी 1 से लो आपका जो भी रेजोल्यूशन है, 21 days टिल January 21, वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, आंधी आए तूफान आए उसको फॉलो करने की कोशिश करो. ये क्यों 21 डे चैलेंज होता है? आई डोंट नो इफ यू नो द साइंस बिहाइंड व्हाई दे से इट्स अ 21 डे चैलेंज. बिकॉज 21 डेज आप जब कोई चीज करते हो तो वो आपका नेचर बन जाती है, वो आपका हैबिट बन जाती है, वो आप, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम. एंड देन 22nd 23rd डे you'll be able to do it much more easily. Therefore we have to be very careful. Therefore we have to be very careful कि जब हम कोई गलत चीज, कोई उल्टी चीज करते हैं over a prolonged period of time, that also becomes our habit, our nature, our संस्कार. और फिर उस गलत संस्कार को चेंज करने में हमको वापस 42 डेज लगाने पड़ते हैं. राइट? राइट? ऐसा होता है ना. मैं 5-6 दिन तक जल्दी उठ रहा हूँ, फिर एक दिन मैं नहीं उठा, मेरे को उठना था 6 बजे, मैंने नहीं उठा 6 बजे, 8 साढ़े 9, अरे एक ही दिन की तो बात है, 8:30 9 बजे उठ गया. फिर नेक्स्ट डे, अच्छा चलो अभी आज तो संडे, आज तो सैटरडे संडे आ रहा है ना, वीकेंड, आज भी 8-9 बजे उठ जाता हूँ, नो प्रॉब्लम. फिर मंडे आएगा ना, नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करूंगा. आई एम टॉकिंग अबाउट कैसे रेजोल्यूशन टूटता है. तो आपने मंडे टू फ्राइडे तो आप उठे टाइम पे, फिर सोचा अरे वीकेंड है, लेट उठ जाते हैं, फिर वो वापस चार्ट आपका, ग्राफ आपका ब्रेक हुआ. फिर वो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक पहुंच जाता है, फिर लगता है ये वीकेंड भी खत्म हो रहा है, अच्छा चलो नेक्स्ट वीकेंड से फिर से मैं वापस ट्राई करूंगा. देयर कैन नॉट बी अ मार्जिन इन दीज 21 डेज, है ना. एक मेरे प्रोफेसर ने मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन बताई थी, विच आई हैव केप्ट विथ माई सेल्फ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ही टोल्ड मी, अबैंडन सेल्फ पिटी. अपने आप के ऊपर रहम करना बंद करो. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 104 बुखार में भी मेरे को उठना है तो उठना है ना. ये मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है, रात को 4 बजे सोए फिर भी 5 बजे उठना है. ऐसी हिंसक सोच नहीं रखनी है. दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि ये सोचना कि अरे आज तो ठंड का मौसम है, चलो थोड़ा लेट उठ जाते हैं, अरे अब आज तो वीकेंड है, चलो थोड़ा लेट उठ जाते हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जल्दी उठने
की आदत को, अगर आपको एक आदत बनानी है, तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट एज एन एग्जांपल, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इट कैन बी अबाउट बहुत जनों को क्रेविंग होती है जंक खाने की, एंड दे नो कि ये जंक खाने से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इंडिजेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स फेस दिस, फिर भी वो जंक को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और इट कैन बी स्मोकिंग, इट कैन बी अल्कोहलिज्म, इट कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स। बट अपने आप के ऊपर जब हम बहुत रहम खाते हैं ना, अरे चलता है, तो फिर वो वापस हैबिट टूटेगी, फिर जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल में हो जाएगा, फिर अपन 2026 के रेजोल्यूशन पे वापस वहीं पे आके बैठे रहेंगे, एक साल मैंने क्या किया। और अभी तो आपको ऐसा भी फीलिंग होता होगा, बहुतों का ये फीलिंग होता है कि समय भाग रहा है वही 24 आवर्स, है वही घड़ी, है वही मिनट, वही सेकंड्स, वही घंटे के कांटे जो 5 साल पहले थे, 6 साल, फिर कैसे लगता है हमको कि समय भाग रहा है? अरे समय तो उसी गति से भाग रहा है, लेकिन मैं समय की रफ्तार से अपने आप को मैच नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। दैट इज द प्रॉब्लम। वाई? समय तो उसी स्पीड से चल रहा था 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले, बट 5, 10 साल, 15 साल पहले यूट्यूब इतना नहीं था, फेसबुक इतना यूज नहीं हो रहा था, इंस्टाग्राम इतना यूज नहीं हो रहा था, दैट वॉज द प्रॉब्लम, राइट? तो काफी सारा हमारा समय जो फ्री था पहले, पहले एक टीवी थी, टीवी पे सिर्फ DD1 और DD2 था, और उस पे भी शाम को 7 से 8, 9 बजे तक फैमिली बैठ करके साथ में एक दो सीरियल देख लेती थी। अभी 24/7 सीरियल्स आ रहे हैं, 24/7 एपिसोड्स आ रही है, सीरियल 10, 10, 12, 12, 15 साल तक चल रहे हैं, और भी नेटफ्लिक्स आ गए, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, सो ये सारा धीरे 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 करके आपका समय खा रहे हैं, है ना? है ना? हाँ, of course we're using Zoom as a medium for something good, but what am I using? I'm not saying at all कि social media is bad. I'm absolutely not hinting कि social media is bad, or using Instagram or Facebook or YouTube or whatever is bad. I'm absolutely not hinting at that. I'm trying to hint at spending extra hours unnecessarily, जो आज की भाषा में हम कहते हैं binge watching, binge eating, है ना? मैराथन हो गया कि मेरे को एक एपिसोड देखा तो 12 एपिसोड देखने ही है पूरा दिन बैठ करके। अच्छा चलो, मैंने 12 एपिसोड आज बैठ के देख ली, क्या मैं कल 12 एपिसोड जितना टाइम दे करके, फोकस्ड रह करके, अपना जो मेन काम है पढ़ाई का, लिखाई का, प्रेजेंटेशन का, असाइनमेंट का, एग्जाम की तैयारी का, कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसी डिटर्मिनेशन के साथ? 12 एपिसोड देखने में तो बहुत दृढ़ता थी, फिर क्यों हम क्रिप कर रहे हैं या क्राई कर रहे हैं कि टाइम मेरा वेस्ट हो गया? See, if we have wasted the time that we have on our own, तो फिर कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि अच्छा, यू नो, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू फील सॉरी फॉर यू। ये भी होता है, टाइम हमने खुद वेस्ट किया, और दूसरे सॉरी हो आपके लिए कि अरे कोई बात नहीं बच्चे, आपने टाइम वेस्ट किया, चलो अब कर लो। अब कर लो, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है ना क्योंकि जो टाइम जाना था वो तो गया, जो टाइम जाना था, जो टाइम वेस्ट होना था वो तो गया था, अब अपने पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब जो बचा कुचा टाइम है उसी का बेस्ट उपयोग करने की कोशिश हमको करनी है, राइट? बोलते हैं ना कि स्वयं ब्रह्मा भी इस सृष्टि पे आ जाए तो भी वो बीता हुआ समय तो वापस आपके हाथ में ला करके नहीं दे सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स टू बी एबल टू अनलॉक योर इनर पोटेंशियल is the best usage of time, is good usage of time, is maximum usage of time, is the full usage of time। ये जो समय है, आई कैन से एक सॉर्ट ऑफ शक्ति है, इस समय की शक्ति को हमको हार्नेस करना है कि कैसे मैं अपना समय और बेहतर यूज कर सकूं। इसका मतलब ये नहीं है एवरीवन की, है ना, कि हमको अपना पूरा समय इतना टाइट बना देना है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं हो और मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाऊं। दैट इज नॉट माई ज्ञान टू ऑल ऑफ यू राइट? दैट इज नॉट माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि इतना टाइम की 4 से लेके 5 बजे तक, ये 5 1 से लेकर के 6 बजे तक, ये फिर 6 से 7, 7 से, you have to keep time to for you to be engaged with recreational activities, family time, time for friends, time for everything. There is a time for everything. Time for social media. There is a limit to everything. द प्रॉब्लम इज जब कोई चीज उस लिमिट के बाहर चली जाती है। आप सोशल मीडिया यूज, अभी तो
आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो इफ यू यूज दिस फीचर, इंस्टाग्राम ने खुद एक फीचर बनाया है जहां इंस्टाग्राम खुद आपको बोलता है कि भाई 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, अब मेरे को यूज करना बंद करो। देखा है आपने ये फीचर इंस्टाग्राम पे? यू कैन सेट अ टाइम लिमिट, जिसके बाद इंस्टाग्राम खुद आपको बोलेगा कि भाई आपका टाइम हो गया, 15 मिनट्स हो गया, देन यू कैन चूज। हाँ हाँ, देख, राइट। सो इमेजिन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि यू कैन लिमिट। ये फीचर उन्होंने बनाया क्यों? क्या जरूरत थी उनको? तो आई मीन दे आर मेकिंग ह्यूज बिजनेस आउट ऑफ यू यूजिंग their ऐप मोर, बट दैट फीचर हैज बीन एडेड by the app because they know the kind of impact it is creating on the society. एंड देन ये तो डिसाइफर करने में किसी को मुश्किल नहीं होती होगी, या ये पता लगाने में कोई मुश्किल नहीं है कि कंटेंट क्या मेरे को देखना है और कंटेंट मेरे को क्या नहीं देखना है। हम 4 या 5 या 6 ईयर ओल्ड बच्चे तो नहीं, अब तो 4 5 6 साल के बच्चों को भी मालूम है क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, और हमको मालूम है, बट वी आर सो ड्रॉन इनटू इट। ऐसा उसके चुंगल में हम फंस चुके हैं कि हम उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, अच्छा रील बनी है 30 40 सेकंड की, अब हमारे पास 30 40 सेकंड की रील भी पूरी देखने का पेशेंस नहीं है। 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्स, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो वी नो द प्रॉब्लम एट हैंड। ज्यादा उस प्रॉब्लम के बारे में हमको चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड कि मेरे को अब इससे कैसे बदल करके बेहतर बनना है। सो आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू 1 मिनट, इट्स अबाउट 6:32, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट कि आप लिखो आपकी एक कमजोरी का नाम, राइट, जिसको आपको बदलना है। एक ऐसी कमजोरी, it can be not eating right, not drinking enough water, not studying enough, wasting a lot of time social media, da 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 da, spending a lot of time with friends, sleeping a lot, being lazy. It can be anything. अपनी एक मेन कमजोरी, ये भी हमको मालूम है, किसी को हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारी मेन कमजोरी क्या है, राइट? हमको ये मालूम है, तो लिखो आप कि आपको कौन सी कमजोरी आपकी मेन लगती है, जो आपके प्रोग्रेस में बाधा डाल रही है, या इज कॉजिंग अ हिंड्रेंस इन योर पर्सनल एकेडमिक प्रोग्रेस। इफ यू हैव अ नोटबुक एंड पेन, राइट इट डाउन। आई एम सो हैप्पी टू सी पीपल पोस्टिंग अबाउट दिस, राइट, ऑन अ पब्लिक फोरम, राइट। ये बहुत यू नो, इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू, to post your weakness on a public platform, which is good. And that therefore we can all acknowledge, देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो वही 5 6 प्रॉब्लम्स की ही कैटेगरी है, प्रॉब्लम्स भी ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम्स भी वही, देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन, बीइंग लेजी, सोशल मीडिया, इमोशंस, ओवरथिंकिंग, नॉट बीइंग एबल टू वेक अप ऑन टाइम, प्रॉब्लम्स भी ज्यादा नहीं है, वही 8 10 प्रॉब्लम्स है। देखो हम सबकी प्रॉब्लम सेम है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है। बट फिर क्या हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्रॉब्लम, एंड वी ऑल आर अंडरगोइंग द सेम प्रॉब्लम, वी आर ऑल इन द सेम बोट। एक ही तरीके की प्रॉब्लम से हम सब गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। बट हमको अब इस प्रॉब्लम को, बोलते हैं ना, राई का पहाड़ नहीं बनाना है, पहाड़ को कम करके राई जितना बनाना है। तो ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, राइट? Now write down one solution to whatever problem you have posted or written down. खुद उसका सोल्यूशन ढूंढ के लिखो कि अच्छा मेरे को मालूम चल गई कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? पानी कम पी रहा हूं तो भाई आपको कितने कितने, और ये मत लिखो पानी ज्यादा पीना है, मेरे को कितना पानी पीना है दिन में, 4 बॉटल, 5 बॉटल, 6 लीटर, 10 लीटर, कितना पीना है? जल्दी नहीं उठ पा रहा हूं, अच्छा मेरे को जल्दी उठना है, अरे कितनी बजे उठना है? बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विथ योर सोल्यूशन। जितना आप अपने सोल्यूशन को स्पेसिफिकली डिफाइन करोगे, उतना आप उसको अचीव करने में, यू नो, उसको अचीव करना बहुत आपको इजी लगेगा। Whatever habit you have written down, whatever weakness you've written down, whatever problem you've written down,
उसका सल्यूशन जितना स्पेसिफिक हो सके उतना लिखो। Let me give you about 10-15 more seconds. If you want to think and then write, that's also okay. क्योंकि ये सब बातें एंड ऑफ द ईयर है तो सोचने में थोड़ा मजा भी आता है, बिकॉज वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर। एक नया साल है, नई शुरुआत करनी है, कुछ नया करके दिखाना है, कुछ कुछ नया अपने आप में बदल के दिखाना है, नया बनना है। तो दिस ऐसे ऐसे थॉट्स इस समय अपने सबके चलते हैं, इंक्लूडिंग मी। डे बिफोर yesterday मैंने पूरा दिन अपना निकाला। I went to a co-working space in Bangalore. I'm in Bangalore. So I went to a co-working space. मैंने अपने आप को लॉक किया एक रूम में, खाना पीना सब लेके गया और पूरा दिन बैठ करके मैंने प्लान किया इस साल मेरा पर्सनल गोल क्या होना चाहिए, इस साल मेरा फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए, इस साल पिछले साल में मैंने क्या अच्छा किया और क्या ठीक नहीं हुआ, सबका मैंने एक रिव्यू किया। है ना, होता है ना मार्च एंड में जब अपने बॉस अपने को रिव्यू करते हैं, जो ईयर एंड रिव्यू बोलते हैं कि इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। है ना, तो अपना एक रिव्यू करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट रिव्यूइंग आवरसेल्फ, एंड बिकॉज वी डोंट रिव्यू आवरसेल्फ, अपने आप की चेकिंग नहीं करने की वजह से हम रियलाइज नहीं करते कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। या फिर दूसरा एक्सट्रीम, डोंट केयर एटीट्यूड हो गया एकदम कि अरे है तो है, no problem. But I'm guessing and I hope and I believe and I pray that all of you who are attending this session are of course not in that category who don't want to change themselves. Of course you want to change yourselves, and hence you are attending this session, and hence you are a part of this session. So we need to understand that every weakness can be worked out. हर weakness का एक solution होता ही है, और वो solution भी हमारी हाथ में है, हमारे हाथ में है। अब मेरे को फिगर आउट करना है कि अगर मेरा सोल्यूशन ये है तो मैं उस सोल्यूशन को कैसे अप्लाई करूं, बिकॉज टिल आई डोंट अप्लाई आई कैन नॉट चेंज। जब मैं उसको अप्लाई करूंगा तब मुझे अपने आप में परिवर्तन दिखेगा। तो बोलते हैं ना, बहुत हिंदी में भी बहुत अच्छी कहावत है, पुरुषार्थ से परिवर्तन। पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना किसी चीज के प्रति। जब हम किसी चीज के प्रति मेहनत नहीं करेंगे तो अपने अंदर बदलाव और परिवर्तन भी नहीं देखेंगे। So we need to put in this effort. We need to devote the necessary time. अच्छा, अब you need to be very patient with yourself. There is a difference between अपने आप के ऊपर पश्चाताप करना, आत्मग्लानि करना, and there is a difference between having patience with yourself. एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने गोल बनाया और कल सुबह से सब बदल जाने वाला है, जनवरी 1 होगा तो सब, अरे 31 दिसंबर और जनवरी 1 में कोई फर्क नहीं है। इट इज जस्ट दैट द कैलेंडर ईयर इज चेंजिंग। लेकिन फिर भी जब नया साल आता है तो नया उमंग, नया कुछ कर दिखाने का जज्बा हम सब में जागता है। बट 31 और 1 में मैं तो वही हूं, मेरे सर्कमस्टेंस तो वही है, मेरा कॉलेज, मेरी लाइफ, मेरे एग्जाम्स, मेरा पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर तो वही है। वो सब चीजें तो 31 से लेके 1 तक बदल नहीं जाने वाली है। राइट, राइट। सो हाउ डू आई रियलाइज दीज थिंग्स? रियलाइज होगा चेकिंग के थ्रू, और अपने आप से, इफ यू वांट टू राइट दिस वर्ड डाउन, पेशेंस। यू नीड टू हैव पेशेंस विद योरसेल्फ, एंड यू नीड टू बी पेशेंट। और वो पेशेंस रखते रखते मैं कहाँ पहुंच रहा हूं, कितना मैं अपने आप में अचीव कर पा रहा हूं, कहाँ तक पहुंच रहा हूं, कितना मैंने कितनी डिग्रीज अपने आप को, कितना परसेंटेज अपने आप को मैंने चेंज कर लिया है। ये चीज अपने आप के अंदर हमको महसूस करनी है। महसूसता भी एक शक्ति है ना। अपने आप के अंदर की गलतियों को महसूस करना, फिर उसका सल्यूशन खोजना, उस सल्यूशन को अप्लाई करना, और उस सल्यूशन को अप्लाई करते हुए चेंज होना भी एक शक्ति है। ये सारी शक्तियां अपने यहाँ पे ऑलरेडी है। राइट, राइट। ये सब ऑलरेडी हमारे अंदर इननेटली, मतलब ऑलरेडी है। देखो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इननेट।
अ लिटिल मोर। जैसे एक बीज होता है, उस बीज को हमने बो तो दिया, है ना, जमीन में मिट्टी में डाल दिया, लेकिन अगर उस बीज को खाद नहीं मिले, पानी नहीं मिले, सूरज की रोशनी नहीं मिले, तो वो फलीभूत तो होगा नहीं, वो पौधा तो उगेगा नहीं, right? It needs to get the necessary things to sprout and bloom and become a tree or a plant or whatever, right? तो वो बीज है यहाँ, पोटेंशियल का बीज है यहाँ, और उसकी चाबी अपने ही हाथ में है। उस बीज को अनलॉक करके टू रीच आवर पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल इज आल्सो इन आवर हैंड्स। एंड फॉर दिस समटाइम्स वी नीड टू बी वेरी ब्रेव एंड वी नीड टू टेक ब्रेव डिसीजंस इन आवर लाइफ। बहुत ब्रेव डिसीजंस अपने आप को लेने पड़ते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। जब मैं कॉलेज में था तब बहुत बार इंटर्नशिप करनी पड़ती है ना, समर में इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है। तो मैंने बैंगलोर में, मेरे को भी अपने कॉलेज के टाइम पे इट वाज कंपलसरी, एक जगह पे हमको इंटर्नशिप करनी थी। सो आई इंटर्न देयर फॉर, और ये कंपनी बहुत जानी मानी कंपनी थी बैंगलोर में, इस कंपनी का बहुत नाम था। काफी सारे मेरे सीनियर्स ने वहां से इंटर्नशिप करी थी, एंड आई गॉट एन इंटर्नशिप देयर, एंड मैंने ये इंटर्नशिप करी। तो जब ये इंटर्नशिप करी तब बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी है, और इतनी अच्छी कंपनी है, लोग इतना इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई वेंट एंड आई इंटर्न देयर, एंड देखा मैंने कि क्या चल रहा है इस कंपनी में एंड ऑल ऑफ दैट। धीरे धीरे मालूम चला कि अरे, आई एम टॉकिंग अबाउट कैसे मैंने अपनी पोटेंशियल को रियलाइज किया। तो मैंने मैंने इस कंपनी को देखा और इस कंपनी के वर्क कल्चर को स्टडी किया, और मैं देख रहा था कैसे जो कंपनी 9 बजे खुलनी चाहिए थी, वो कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे खुल रही है। मैं 9 बजे गेट पे खड़ा हूँ और इतनी बड़ी कंपनी का गेट ही नहीं खुला है 10, 10:30 बजे तक, राइट? एंड धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि अगर ये कंपनी इतनी जानी मानी है, इतनी वेल नोन है, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द राइट वर्क एथिक्स, ना कोई फिक्स प्रॉपर लंच टाइम है, राइट, ना कोई खत्म होने का टाइम है, खत्म होनी चाहिए मीटिंग्स 6 बजे, 8, 9 बजे तक मीटिंग्स चल रही है, और सीईओ को कोई कंसर्न ही नहीं है कि शायद दूसरों को 6 बजे निकलना पड़ सकता है, शायद उनका दूसरा कुछ कमिटमेंट या काम हो सकता है, और फिर नेक्स्ट डे जो वापस 9 बजे खुलना चाहिए वो 10, 10:30, 11 बजे खुल रही है। अच्छा, उसके पहले हमको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती थी एज एन इंटर्न कि कल कंपनी 10 बजे या 11 बजे खुलेगी, और आप लेट आइएगा, 9 बजे मत आइएगा। और हम कॉलेज लाइफ में थे तो वेरी डिलिजेंटली एज एन इंटर्न, व्हाट डू यू थिंक, नहीं नहीं मेरे को तो टाइम पे पहुंचना है, हैव टू बी, बिकॉज दैट्स पंक्चुअलिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू एनीथिंग व्हेन यू आर वर्किंग अंडर अ कंपनी। देन आई रियलाइज्ड कि अगर ये कंपनी, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रियलाइजिंग योर पोटेंशियल, कोई वर्क एथिक, वर्क कल्चर, प्रोफेशनलिज्म फॉलो नहीं करते हुए अपना इतना नाम कमा लिया है मार्केट में, तो क्या मैं एक और कंपनी नहीं खोल सकता हूं जो वर्क एथिक्स को फॉलो करे, जो प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करे, जो अपने एम्प्लॉयज के टाइम की रेस्पेक्ट करे, जो खुद के टाइम की रेस्पेक्ट करे? तो अगर ये कंपनी विदाउट फॉलोइंग दीज थिंग्स हैज अचीव्ड अ नेम इन द मार्केट, कांट आई कांट आई follow ethics and make a better name for myself and create a better company for everyone? तो मैंने अपनी सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में ही अपनी कंपनी खोली और अपनी कंपनी लॉन्च करी। And I'm not saying this out of, pride or attitude, but I'm saying this out of, something that you all can learn from it, because you all are also college students, और बहुत सारे यंग entrepreneurs हमारे बीच आज बैठे होंगे जिनको कुछ कर दिखाने का, कुछ कंपनी खोलने का, कुछ नए आइडियाज आते होंगे, and they might want to see how they can achieve it. So I started off this company, and within 2 years of me opening the company, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे कंपनी खोलने की वजह से, बट विद इन 2 years वो कंपनी बंद हो गई, राइट? वो कंपनी बंद हो गई जो इतनी वेल टू डू, वेल नोन कंपनी थी। धीरे धीरे मार्केट में नाम फैला कि दे आर नॉट, ये जो एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म की मैं बात कर रहा था कि दे आर नॉट फॉलोइंग दिस, और नो वन वांटेड टू जॉइन द कंपनी। काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो मार्केट में वो काम लेकर के आए वो बहुत अच्छा काम था, बट
द वे एंड द मीन्स, एक कहावत भी है इंग्लिश में, द मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड। भले मेरे को 100 नंबर मिल जाए, लेकिन अगर मैंने चीटिंग करके किसी से, किसी के पेपर से नकल करके वो 100 नंबर लिए, सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बट अपनी मेहनत से मैं 70 नंबर लाऊं, दैट्स मोर satisfactory to myself. So this company was doing well, but ethics नहीं थे, values नहीं थे, morals नहीं थे प्लेस में, एम्प्लॉयज के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारी कंपनी जो एकदम नई नई चालू हुई थी, हमको मालूम नहीं था कि कैसे हमको काम करना है, बट एथिक्स वर इन प्लेस, एंड बिकॉज एथिक्स वर इन प्लेस वी वर एबल टू outdo them or outgrow them as destiny had it. So another thing that is very important in today's work culture, all of you are going to be young entrepreneurs, work in big companies or start your own companies, or do something great in life. I'm very certain that all of you will achieve something great in your life. So we need to keep ethics at the core to be able to realize our potential. Ethics and values and morals are very important. क्योंकि झूठ फरेब ज्यादा दिन आपको सस्टेन नहीं कर पाएगा, ज्यादा दिन तक वो काम चल ही नहीं पाएगा, राइट? इट मे सीम डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग, है ना? इट मे सीम डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग, राइट? बट it will take you to a lot of places, and you will see because of you having ethics and morals, आपके ethics और morals से आप देखोगे धीरे 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 समाज बदल रहा है. Again, I'll give you an example. When we started this company, we were the first company in India to take license for a particular program. है ना? आपको कई सारे प्रोग्राम्स जब करते हैं तब लाइसेंस लेने पड़ते हैं काफी सारी चीजों के, तो हमने लाइसेंस लिया. बहुत सारी दूसरी कंपनी से हमको बहुत बैकलैश मिला. व्हाई? बिकॉज दे वर डूइंग द सेम थिंग्स बट विदाउट टेकिंग लाइसेंस, विदाउट गिविंग. अगर किसी और की चीज है तो मेरे को लाइसेंस लेके उसको पैसा देना है, ये नियम है. बट बिना लाइसेंस के वो ये काम कर रहे थे. काम अच्छा चल रहा था, कोई चेकिंग नहीं कर रहा था, तो लाइसेंस के पैसे बच रहे थे. But we took license. We became the first company in India to take license for that Disney. It was a Disney program that we had taken license for, and we took the license and we did it. धीरे धीरे हमने देखा कि जो जो कंपनीज हमको बोल रही थी कि क्यों आपने लाइसेंस लेने का कल्चर स्टार्ट किया, आज वो सारी कंपनीज लाइसेंस ले रही है, क्योंकि अब उनके मन में डर बैठ गया है कि अगर हम लाइसेंस नहीं लेंगे और कहीं पकड़े गए तो जो पैसे बचा रहे लाइसेंस नहीं लेके, उसका डबल पैसा हमको देना पड़ेगा और मार्केट में नाम खराब होगा. सो अलग. So you see, when you take the right step, people around you will start following you. People around you will also be forced to do the right thing. So never ever think कि क्या मेरे को ही सच्चा बनना है, क्या मेरे को ही झांसी की रानी बनना है, क्या मेरे को ही ये करना है. नहीं. You stand your ground. You stand your ground and you will see people will follow. आजकल की दुनिया में I'll tell you, सच्चाई इतनी कम हो गई है कि आपके सच्चाई की वैल्यू और बढ़ जाएगी. सच्चाई की वैल्यू, जो चीजें पहले बहुत सिंपल थी कि अरे सच्चा होना तो नॉर्मल सी बात है ना, ये तो नहीं बनोगे सच्चा तो और क्या करोगे भाई, राइट? ये तो बेसिक प्रिंसिपल है. बट आई हैव सीन नाउ इन वर्क, इन कल्चर, इन फैमिली लाइफ, इन स्टूडेंट लाइफ, इन कॉलेज, इन वर्किंग प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटल्स, आई हैव सीन कि जो जो चीजें सच्चाई से चल रही हैं वो ज्यादा टिकी हुई हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है. बोलते हैं ना कि अरे वो पुलिस ऑफिसर तो सच में ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. दैट डॉक्टर, अरे इतना अच्छा, कितना साफ दिल नेक बंदा है. और तब आप क्या कर रहे हो, धीरे 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 नाम तो आपका हो ही रहा है. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट रिस्पेक्ट भी आपको मिल रही है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बट आप दुआएं भी कमा रहे हो. एंड आई फील इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ हमको सबकी दुआएं कमाना बहुत जरूरी है, राइट? बिकॉज वी वोंट बी एबल टू सस्टेन आवर सेल्फ इन द लॉन्ग रन. दूसरों की दुआओं का भी एक बल है जो हमारे पोटेंशियल को और भी नर्चर करता है, और भी सही दिशा दिखाता है, राइट? एंड देन उससे जो खुशी मिलती है, किसी और को खुशी देके तो नेचुरली खुशी मिलती है, राइट? नेचुरली खुशी मिलती है, ये तो सबका अनुभव है. सो वो खुशी से हम और भी कुछ, वो उससे हमारा उमंग उत्साह और बढ़ता है.
These are very small things in life. Not only it can, we need to change as people to be able to bring about a change in the society. राइट, बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में ये भी लिखा था कि कंसिस्टेंसी कैसे लाए, कि कोई चीज को कंसिस्टेंटली हम कैसे करें. इट इज नॉट इजी. आई अग्री विथ यू. मेनी टाइम्स हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फैमिली की सिचुएशन होती है, सब कुछ होता है. सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी जाने नहीं वाली है, समस्याएं कभी जाने नहीं वाली है. We are, and I'm sure some of you may have faced very very difficult challenges in life. है ना, हम लोग स्कूल के बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं और देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बिकॉज हाफ द पेरेंट्स आर सेपरेटेड, many children are being raised by single parents, and we are seeing the emotional impact it has on children. So I need to count my blessings, right? We need to count our blessings, कि देखो जो बहुतों के पास नहीं है वो मेरे पास है. और अब मेरे पास है तो एक छोटी सी चीज, मतलब टाइम वेस्ट करके खुद का, क्या मेरे को अपने लाइफ के प्राइम इयर्स, दीज आर द प्राइम इयर्स ऑफ योर लाइफ. आपको अगर अभी लग रहा है समय भाग रहा है, तो 2 साल बाद तो आपको लगेगा समय उड़ रहा है. हाथों से उड़ ही जाएगा समय, अगर आपको लग रहा है कि अभी समय भाग रहा है तो. और वो भी समय आप देखोगे कि समय गोइंग लाइक दिस, चुटकी बजाया और दिन खत्म. क्या किया सुबह से शाम तक कुछ पता नहीं. एंड हेंस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़े थोड़े चंक्स में प्लान करो, थोड़ी थोड़ी स्टेप्स में थोड़े थोड़े गोल सेट करो. ऐसा नहीं कि अगर लास्ट, आई एम गिविंग जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, कि अगर लास्ट ईयर मेरे को 60 मिला तो इस साल मेरे को 100 ऑन 100 लाना है. इट्स नॉट दैट. अच्छा, मैं 60 से 75 तक कैसे पहुंचू, फिर 75 से 85 तक कैसे पहुंचू. अच्छा, 60 से 75 पहुंचने तक मेरे को कितनी और मेहनत करनी पड़ी कि मैं 75 तक पहुंचा या पहुंची. और अब अगर मैं 75 तक पहुंच गया हूं तो मैं 75 से 95 तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत करूं. एंड दिस इज एप्लीकेबल इन एनी फील्ड, नॉट ओनली academics and marks, right? Not only academics and marks. I think all of you are very smart, all of you are extremely talented, and all of you have such a lot of कुछ कर दिखाने की जो इच्छा होती है सबके अंदर ये है, तभी आज का सेशन लोग अटेंड कर रहे हैं. राइट, ऑन अ सैटरडे इवनिंग the youth of the country sitting and attending a session on enlightenment is not easy, right? Right, on a Saturday evening. So if you all are doing that, there is already a sense of direction that you want in your life. है ना, कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है. तो आपने आपने फर्स्ट स्टेप तो उठा ही लिया है. चाह है आपकी, अब राह आपको दिखेगी, और वो आपको खुद को ही दिखानी है. These are just tools. I am not saying anything that you do not know. I am just trying to tell you that you can do it. You have it in you if you plan it out. Planning is key to anything, achieving anything in life. And while planning, ये याद जरूर रखना प्लान करते समय कि अपने आप से पेशेंट रहना है. यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस विथ योरसेल्फ, क्योंकि कोई दूसरा बदल जाता है बहुत आसानी से. आपके आपके चारों तरफ आप देखोगे और आपको लगेगा, है ना, कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है. तो क्या कोई बदल जाता है आसानी से? आपके अराउंड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बीट फ्रेंड्स और फैमिली, नहीं होता है ना. तो आपके अंदर बदलाव आ जाएगा एक ही दिन में. ऐसा हो जाएगा कि आज रात को ही बदलाव आ जाएगा और कल मेरे को सब दूसरे लोग भी सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई इसमें तो बहुत बदलाव आ गया, एक रात में क्या हो गया भाई, कि रातों रात आप तो बदल गए. ऐसा नहीं होता है. सो वी नीड टू बी पेशेंट विद आवरसेल्फ. धीरे धीरे वो बदलाव दिखना चाहिए, और दिखेगा लोगों को, और फिर वो बोलेंगे, अरे 1 महीने पहले तो आप ऐसे नहीं थे, बहुत आपका स्वभाव चेंज हो गया. कितना जल्दी आपको गुस्सा आता था, आज आपको गुस्सा नहीं आता. कितना आपके अंदर चिड़चिड़ापन था. आप तो पढ़ाई नहीं करते थे, आप तो जल्दी नहीं उठते थे, अब आप जल्दी उठते हो. आश्चर्य करेंगे, राइट? आश्चर्य करेंगे. एंड सो यू नीड टू स्मॉल स्मॉल टारगेट्स फॉर योरसेल्फ, एंड देन अपने आप को क्रेडिट भी देना है, अवार्ड भी देना है खुद को ही, खुद को, और कोई नहीं देने वाला है. कि अच्छा, 21 दिन मैंने ये अचीव कर लिया, वेरी गुड. 21 दिन मैंने ये अचीव कर लिया, तो करो एंजॉय एक दिन. राइट? Do not stress yourself, do not worry, do not become so anxious
सो नर्वस कि अरे ये करना है, ये करना है। एक बहुत अच्छी कहावत हम सीखते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं कि अटेंशन रखने का भी टेंशन नहीं हो, है ना। अटेंशन रखना है, बट ये नहीं कि अरे टेंशन हो जाए कि अरे, नहीं। इट हैज टू बिकम अ नेचुरल नेचर, बट इट विल टेक टाइम, बट यू नीड टू लगे रहना है, डटे रहना है, राइट। डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, अदर्स विल गिव अप ऑन यू। समटाइम्स इवन पेरेंट्स विल बी, अरे तेरे से तो होने नहीं वाला है, तू तो कभी बदलने ही नहीं वाला है, तेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैंने देख लिया 25 साल मैंने जिंदगी के, मैंने तेरे को देख लिया, तू तो बदला ही नहीं, तू तो बदली ही नहीं, अब क्या बदल जाएगा तू। ये तो सुनने में आएगा ही आएगा। ये सब सुनते हुए, देखते हुए, फील करते हुए भी अपने आप से निराश नहीं होना है। अच्छा, बोल रहे हैं एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकालने का, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कोई जरूरी बात कर रहा है तो वो भी इधर से आके इधर से निकल जाए। ऐसा भी नहीं हो, राइट। बहुत बहुत बार बहुत हमारे फायदे के लिए भी बातें होती है, राइट। बहुत बार हमारे फायदे के लिए भी बातें होती है, तो वो हमको जरूर सुननी चाहिए। So the key is to plan, and when you start planning, you start realizing your potential. आपको खुद को दिखेगा, and I'm talking about tangible differences. अच्छा, एक दिन मैंने हेल्दी खा लिया, एक दिन मैंने एक्सरसाइज कर ली, अरे लगेगा मैं तो एकदम फिट हो गया। और जब वो लगेगा, एक, अच्छा, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू, एक दिन हमने अपना स्केड्यूल फॉलो कर दिया। आई एम टेलिंग यू वेयर इज द ट्रैप। एक ट्रैप होता है। आज मैंने अपना स्केड्यूल बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर लिया, कल अपने आप के ऊपर रहम आएगा, अरे कल तो मैंने इतना अच्छा कर लिया, अपने आप के ऊपर इतना नाज आएगा, इतना फकुर आएगा कि अरे कल तो मैंने इतना अच्छा अपना स्केड्यूल फॉलो कर दिया। एक दिन मैंने हेल्दी खा लिया, एक्सरसाइज कर ली, 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ली, तो लगेगा कि बस अब तो सब कुछ अचीव कर लिया। राइट, राइट। नो, इट्स गुड टू अक्नॉलेज, अपने आप को शाबाशी जरूर दो कि कल मैंने अच्छा अपने आप जो जो प्लान किया था वो किया, लेकिन तुरंत अपनी बुद्धि को, अपने थॉट्स को शिफ्ट करो कि आज मैंने ये किया तो मेरे को कल क्या करना है। गुड, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आज मैंने किया, गुड, अब मुझे कल क्या करना है। ओवर द इयर्स, ओवर द इयर्स, पिछले 5-6 सालों में ये मेरा नेचर बन रहा है कि कल की बात को मैं बिल्कुल याद नहीं रखता हूँ। कल की बात मेरे को टोटली भूल जाती है। किसी ने मेरे को प्रेज किया, थैंक यू वेरी मच, आई हैव फॉरगॉटन इट। कल कल का कुछ इवेंट हुआ, इवेंट बहुत अच्छा हुआ, सबने बहुत तारीफ करी, आई हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। बट मेरे को कल क्या करना है, दैट आई विल रिमेम्बर वेरी क्लियरली। अगर आप पास्ट को भी यहाँ रखोगे, फिर कल का जो जो करना है वो भी यहाँ रखने की कोशिश करोगे, तो दिस इज ऑल्सो अ मशीन। पेन ड्राइव अगर 60 GB की है तो उसमें आप 100 GB कंटेंट नहीं सेव कर सकते हो। नया कंटेंट डालना है तो पुराना कंटेंट डिलीट करना ही पड़ेगा। देर इज नो अदर चॉइस। या उस 60 GB की पेन ड्राइव को 1 TB की हार्ड डिस्क बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो एवरीथिंग, या एज यू हैव स्टार्टेड टू रियलाइज, सब अपने हाथ में है, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करना भी अपने हाथ में है। So I think the key takeaway for all of you should be to realize the importance of time, to definitely realize the importance of time, to have a good plan for the new year for yourself, whatever the goals may be. और एक होता है ना, शॉर्ट टर्म विजन भी हमको रखना है और लॉन्ग टर्म विजन भी रखना है। चलो, शॉर्ट टर्म विजन क्या, 2 महीने 3 महीने में मेरे को कोई एग्जाम आ रही है तो उसमें क्या अचीव करना है, कहां तक मेरे को क्या करना है। बट ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इट्स बेसिक मैनिफेस्टेशन। जब कोई चीज आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, उसके आपके थॉट्स उसके प्रति चलते हैं, तो बोलते हैं ना, वो कौन सी फिल्म का बहुत फेमस डायलॉग है कि पूरी कायनात पीछे पड़ जाती है उस सपने को साकार करने के लिए। It's reality. I'm telling you this. I never thought that we would be the first company to take license in the country, but it happened. It starts with your thought. अभी तक गवर्नमेंट ने सोचने पे तो टैक्स नहीं लगाया है, तो जीएसटी नहीं लगा है, राइट। तो प्लीज अच्छी अच्छी चीजों को सोचो, सोचने में कोई ये नहीं है। एंड वी से नो, थिंक 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 दैट यू वांट टू
लैंड ऑन द सन, तो एटलीस्ट किसी ना किसी तारे पे तो लैंड हो ही जाएंगे। अगर आप एम ही इतना करोगे तो पहुंचोगे कहाँ? एम बड़ा करोगे तो कहीं पे पहुंचने की उम्मीद रहेगी। So you need to aim big and then start working towards becoming that. But it all starts with a powerful thought. It all starts with realizing your true potential. It all starts with building a repository of positive thoughts. ये पॉजिटिविटी आपको मिलेगी कहां से? बहुत जने कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत जने बात कर रहे हैं कैसे मैं जल्दी उठूं, कैसे मैं जल्दी सोऊं। सबसे पहले आपको अपने अंदर, ये एक और टूल है, एक और स्किल सेट है विच यू कैन राइट डाउन, अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक जमा करना है। जैसे ही कोई व्यर्थ, नेगेटिव, अननेसेसरी थॉट आया कि अरे आज तो मेरे से नहीं हो पाया, ये आज तो मेरे से नहीं हो पाया को तुरंत अगर आपने चेंज नहीं किया तो ये एक दलदल है। आज तो मेरे से नहीं हो पाया, कल भी मेरे से नहीं हो पाएगा, अरे इतना मेहनत करा फिर भी नहीं हो पाया, सब तो किसी को तो मेरे में उम्मीद ही नहीं है। ऐसी निराशा में ये बदलेगा कि देन उस दलदल में आप फंसे चले जाओगे। लेकिन आज तो मेरे से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल मेरे को क्या करना है, तुरंत लिया पेपर और पेन, लिखा कि कल मेरे को ये करना है, आज मैंने ये नहीं कर पाया, आज मैं क्योंकि मैंने इस यहाँ टाइम वेस्ट किया या नहीं अचीव कर पाया, इसकी वजह से मैं नहीं अचीव कर पाया। डजेंट मैटर हाउ डू आई डू इट, बेटर टू अचीव इट टुमारो। कल के लिए मेरे को क्या करना है? तुरंत आपने उस नेगेटिव थॉट को एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल थॉट से कट करके, चेंज करके, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके उसके प्रति काम करने के लिए मोटिवेट कर दिया आपने अपने आप को। राइट, इसीलिए आई सेड सब कुछ अपने हाथ में। सो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स का स्किल सेट विच विल कम टू यू थ्रू सेल्फ टॉक एंड मेडिटेशन। यू कैन राइट दिस डाउन ऑल्सो। मेडिटेशन इज नथिंग बट सेल्फ टॉक। अपने आप से बातें करना, एक कमरे में बैठ के सारा फोकस या कंसंट्रेशन, बहुत जनों ने ये लिखा है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है। इफ यू नीड टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल, फर्स्ट यू नीड टू रियलाइज कि भाई मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मेरे को मेरी पोटेंशियल बढ़ानी है तो भाई मैं कौन हूं। देखो किसी भी चीज को आप लेते हो, मैं बोल सकता हूँ ये मेरा रुमाल है ना, ये मेरा फोन है, ये मेरा रुमाल है, ये मेरी बॉटल है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शर्ट है, तो मैं कौन? राइट, मैं कौन? सो आई एम दिस इनफाइनाइट एनर्जी दैट इज रिसाइडिंग इन दिस बॉडी। I am that point of light, that energy that is residing in the center of my forehead. Anytime you are feeling lonely, anxious, nervous, dissatisfied, कभी भी ऐसी कोई फीलिंग आ रही है तो एक जगह पे बैठ जाओ, एक जगह पे बैठ जाओ और अपना सारा अटेंशन सेंटर ऑफ द फोरहेड। इमेजिन, यू कैन कीप योर आइज ओपन, या अगर बहुत कुछ चल रहा है आसपास तो अगर आपको 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए, हमने एक बैंगलोर में बहुत अच्छी चीज डिवाइस करी विच वॉज कॉल्ड जस्ट अ मिनट। हम उसको बोलते थे जैम, तो बोलते थे लेट्स जैम। तो जैम क्या होता है, हम 1 मिनट टाइम निकालते हैं और 1 मिनट पॉजिटिव थॉट्स सुनते हैं। मे बी वी कैन प्रैक्टिस इट नाउ, जस्ट गिव मी 10 seconds, आई विल गेट द बुक एंड आई विल शो इट टू यू। Sorry. So we created this book called Just a Minute, and I've given it to I think 10,000 people in my life already. And बहुत अच्छी इसमें commentaries है, right? So let's try and practice this. I want you to first
तो कैसे होता है, आई एम जस्ट गोइंग टू रैंडमली ओपन एनी वन पेज, एंड मेरा मानना ये है कि जो कमेंट्री हमको मिलती है आज के लिए, दैट इज द कमेंट्री दैट वी रिक्वायर फॉर टुडे. So I'm just going to randomly open a page in front of you all, and I will want all of you कि just sit back, relax. I'm going to read the commentary for you. और जैसे जैसे मैं commentary पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में है commentary, but very simple English. जैसे जैसे मैं commentary पढ़ रहा हूँ, आप वो अपने मन में visualize करो. Visualize what I'm trying to tell you. एंड देयरफॉर स्लोली यू आर ट्रेनिंग. मन भी एक बच्चे की तरह है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा. जो बहुत समय से गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए रिहैब में डालना पड़ेगा. है ना. क्या होता है जब कोई चीज से एडिक्ट होता है तो उसको रिहैब में डालते हैं ना, सही करने के लिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. अपने मन को अपने ही मन के रिहैब में डाल करके उसको ठीक करना है. हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? बाय गिविंग इट पॉजिटिव थॉट्स. द थॉट्स दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया. The thoughts that are not available on social media very easily. I'm just going to, I want all of you to, if you want to leave your eyes open, that's okay. If you want to close your eyes, that's okay. अपने माइंड में, अपने सर के बीच में, मस्तिष्क के बीच में, at this point, realize yourself as a point of light. Visualize yourself as a point of light. I'm going to open any one commentary today and read it out to you. Maybe I'll translate a little bit in Hindi in between as well. Taking just a minute, 1 minute लेते हुए, I imagine myself like a bird taking flight. अपने आप को एक खुले पंछी की तरह महसूस करें जो हवा में उड़ने वाला है, completely free. I am free from the past. I am free from complaints. अपने आप को पास्ट से फ्री करते हुए, किसी भी तरह की कंप्लेंट से, ब्लेम से फ्री करते हुए. आई एम फ्री फ्रॉम द डिजायर टू टेक रिवेंज. किसी से बदला लेने की भावना को भी खत्म करिए. ये पक्षी अब एकदम सारे चिंताओं से, बर्डन से मुक्त होकर के हवा में बहुत दूर तक उड़ रहा है. और इस दूर की ऊंचाइयों से इस पक्षी को, इस पंछी को नए पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं, नई नई चीजें ये देख रहा है. आई क्रिएट स्पेस टू गेन न्यू पर्सपेक्टिव्स, opportunities to learn. I take lessons from the past. जो जो हुआ पिछले साल में, उन सब से सबक लेते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं. कैसे? अब मेरे को अपना रास्ता बहुत सही, दिशा बहुत क्लियर दिखाई दे रही है. I have let go of all my fears. अपने अंदर जिस भी चीजों से आप डरते हो, जो जो फियर्स हैं, उन सबको लेट गो करते हुए, अपने आप को ट्रस्ट करते हुए, अपने आप में विश्वास रखते हुए, अपने आप को कंप्लीटली फ्री महसूस करो. मेक योर सेल्फ एंड फील एक्सट्रीमली फ्री. मेक योर सेल्फ फील लाइट. जैसे जैसे ये बर्ड उड़ रहा है, सारे बर्डन्स, चिंताओं से मुक्त होकर उड़ रहा है. और जितना ये अपनी चिंताओं से मुक्त है, उतना ऊंची उड़ान भर पा रहा है. एंड नाउ द रियल मी remains. The real me that is free from all these burdens and is flying high, extremely high. एकदम ऊंचा 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 उड़ रहे हैं. उमंग उत्साह के पंखों के साथ उड़ रहे हैं. और नए साल के लिए अपने आप को एकदम तैयार महसूस कर रहे हैं. एक नए उमंग, एक नए जज्बे के साथ, किसी भी चुनौती को, किसी भी परिस्थिति को पार करने की क्षमता रखते हुए, अपने आप में विश्वास रखते हुए, एक अनोखा बल अपने आप में महसूस कर रहे हैं.
हम याद करते हैं उस भगवान को जो शक्ति का सागर है, ज्ञान का सागर है, खुशी का सागर है, स्नेह का सागर है, पवित्रता का सागर है। और मैं उसका बच्चा हूं या उसकी बच्ची हूं। जब भी कोई कठिनाई, कोई परिस्थिति आए अपने जीवन में, इस सागर की लहरों को अपने आप के ऊपर आता हुआ, गिरता हुआ महसूस कर उन चिंताओं से अपने आप को मुक्त कर दो और इस सागर में समा जाओ। और आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि कैसे आपके अंदर की शक्ति एक नई ऊर्जा का रूप ले रही है, अपने आप को बदलते हुए, महसूस करते हुए। दूसरे भी आपके अंदर बदलाव देखेंगे, महसूस करेंगे। और बहुत जल्द you will be able to realize your full inner potential. Feel free to open your eyes. Feel free to open your eyes. How do you feel? How do you feel? कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? I think someone has lifted their hand. Yogesh, आपको कुछ बोलना है? Please feel free to say. हेलो सर। Hello. हेलो। हेलो सर। Hello. Yes, Yogesh, tell me. कैसा महसूस हो रहा है? जी सर। सर ठीक हो रहा है सर। मेरा एक डाउट था सर। मैं मतलब कि स्टडी कर रहा हूँ सर, फोकस नहीं कर पाता। बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है सर, और टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो सर तो बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कहाँ आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। जब आपको मालूम है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कहाँ आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। एंड आई एम श्योर आपको ये मालूम है कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट जा रहा है। तो आप अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, टाइम वेस्ट जा रहा है, तो आपको ये भी मालूम है कि टाइम कहाँ वेस्ट जा रहा है, तो आपको अपने आप के अंदर दृढ़ता रख करके उसको चेंज करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। प्लस पेशेंटली अपने आप से पेशेंस रख करके, क्योंकि ओवरनाइट ये नहीं होने वाला है काम। जो पहला काम आपको करना था कि आपकी प्रॉब्लम रियलाइज करनी थी, आपने प्रॉब्लम को रियलाइज किया। अब कुछ ना कुछ करो, या तो प्लानिंग करो, या तो मेडिटेशन करो, कोई ना कोई ऐसी तरकीब अपनाओ जिससे जो प्रॉब्लम आपको मालूम है आपके अंदर है, वो धीरे धीरे बदलना चालू हो जाए। जी। राइट? सो दीस आर जी द। सर, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता सर। सॉरी, मेरे को सर सुनाई मैं नहीं दिया। अप्लाई नहीं कर पाता सर, अप्लाई। हाँ, सर मैं अप्लाई। अप्लाई नहीं कर पाता। अप्लाई इसीलिए नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि टाइम वेस्ट जा रहा है। तो धीरे धीरे, आई एम नॉट सेइंग अगर आपका टाइम वेस्ट जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि आप 4 घंटे सोशल मीडिया यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो एक ही दिन में आप 4 घंटे से 4 मिनट पे नहीं आने वाले हो। बिकॉज ये भी एक एडिक्शन बन चुका है, आपके आपका नेचर बन चुका है। कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी फोन आपके हाथ में आ जाएगा और वो अपने आप ही इंस्टाग्राम या जो भी चालू हो जाएगा और आप देखने लग जाओगे। तो यू हैव टू बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। लेकिन ये आपको देखना है, जो आपने एग्जीक्यूशन की बात करी, क्या कि कुछ बदलाव मेरे अंदर आ रहा है या वो भी नहीं आ रहा है, कि 4 घंटे से मैं 3.5 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे पे पहुंच रहा हूँ, नहीं पहुंच रहा हूँ। अगर वो नहीं हो रहा है तो देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। राइट? So try meditation, try planning. 99.9% of the cases can be solved by right planning, can be solved by the right meditation. देखो, 2-3 minutes of सेल्फ टॉक, जो मैंने कमेंट्री पढ़ी, दिस इज नथिंग बट सेल्फ जी। टॉक। जी। राइट? 2-3 मिनट का सेल्फ टॉक आपको अगर इतना पावरफुल फील करा सकता है, तो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस एवरी डे इन योर लाइफ, एवरी 3 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, या जब भी आपको एक एक नेगेटिव महसूसता होती है, या नेगेटिव फीलिंग्स आती है, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, व्हाटएवर, इफ यू आर फीलिंग एनी ऑफ दैट, राइट, थोड़ा थोड़ा सेल्फ टॉक, पॉजिटिव मोटिवेशन, खुद को सेल्फ टॉक अगर आप करोगे, दिस सेल्फ टॉक इज वर्क्स मैजिकली। हमने बच्चों में, कॉलेज स्टूडेंट्स में, बिग बिग बड़े बड़े ऑफिसर्स में वी हैव सीन दिस सेल्फ टॉक
work wonders, which gives them the power to be able to achieve, things much better. Right? Right. Thank you so much. और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, अभय सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिटेशन आंख बंद करके करने से नेगेटिव चीजें दिखाई देती है, लेकिन आपको अपने सामने विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपको वो पक्षी को देखना पड़ेगा उड़ते हुए। अगर आप उस चीज को विजुअलाइज कर रहे हो, जिस चीज को आप बोल रहे हो या सेल्फ टॉक आप कर रहे हो, राइट, इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज दैट, देन दिस नेगेटिविटी विल स्टार्ट गोइंग अवे, राइट? I think Markande Jaiswal has a question. Let's take 2-3 questions and then we can end the session. You have something to say, हेलो Markande? Yes. जी, हेलो। हेलो सर। ओम शांति सर। सर ओम मतलब कि सर सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें सर, जिससे अपन को नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट अपने कैसे पता चले? ये तो आपका आपका विवेक आपसे खुद कहेगा ना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये तो हमारे अंदर हमको मालूम ही है। मालूम है स्मोकिंग ठीक नहीं है, मालूम है ड्रिंक ठीक नहीं है, मालूम है ड्रग्स ठीक नहीं है, मालूम है ये सब, इतना सोशल मीडिया का एडिक्शन ठीक नहीं है। ये तो आपका विवेक आपको खुद कह रहा है। जब आपको आपको ये प्रश्न आ रहा है कि कैसे मालूम चलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं ये मालूम है कि ये नेगेटिव है, जी राइट? सर, जी सर। सो इट इज सर नॉट। मैं बस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ सर। एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या कदम उठाया है? क्या आपने कोई कदम उठाया है और फिर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे? क्या आपने प्लानिंग करी? क्या आपने समय का सदुपयोग किया? क्या आपने मेडिटेशन को ट्राई किया? क्या आपने अपनी दिनचर्या बनाई है? क्या आप टाइम पे सोते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो? क्या आप ये सब टाइम पे करते हो? राइट? तो अगर ये सब नहीं टाइम पे चल रहा है तो एग्जीक्यूशन ठीक होगा ही नहीं ना। जो बोलते हैं ना, अगर रॉ मटेरियल ही ठीक नहीं है तो प्रोडक्ट ठीक कैसे बनेगा? राइट? ओम शांति सर। ओम शांति सर। ओम शांति। सर कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे करें? कंसिस्टेंसी के लिए चार्ट लिखना पड़ेगा आपको। चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर मेरे को ये चीज कंसिस्टेंटली करनी है तो 1 महीने का, इट्स कॉल्ड अ हैबिट ट्रैकर। आप अगर गूगल करके देखोगे हैबिट ट्रैकर, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो इस चीज को। लिखो आपकी हैबिट्स कि मेरे को जल्दी उठना है, टाइम पे खाना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, और सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 till 31, राइट, जितने भी दिन है महीने में, अगर आप लिखोगे, सॉरी आई हैव अ बिट ऑफ अ कोल्ड, अगर आप लिखोगे और फिर टिक करो, अच्छा आज मैंने किया, आज मैंने नहीं किया, आज मैंने किया, आज मैंने किया, आज मैंने नहीं किया, आज मैंने किया, किया 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 नहीं किया, फिर चेक करो महीने के एंड में, राइट? फिर चेक करो महीने की एंड में कि मैंने कितने दिन किया और कितने दिन नहीं किया। सो ट्रैक योर हैबिट्स, उसी से आपकी कंसिस्टेंसी का आपको मालूम चल जाएगा, राइट? उसी से आपको कंसिस्टेंसी का मालूम चल जाएगा। और अगर मालूम चल जाएगा कि 30 दिन में आपने, सॉरी, 30 दिन में अगर आपने सिर्फ 20 दिन किया, 10 दिन नहीं किया, तो चलो फरवरी में मेरे को और 25 दिन तक करना है, राइट? तो उससे कंसिस्टेंसी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है वो भी मालूम चल जाएगा, और कितने कंसिस्टेंट हो वो भी मालूम चल जाएगा। आई थिंक आरती हैज अ हैंड अप फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। आरती, यस, योर क्वेश्चन। ओम शांति सर। ओम शांति। सर मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैं अगर 8 9 10 15 घंटे कितना भी पढ़ लूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने पढ़ा है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि 8 9 10 घंटे की पढ़ाई इतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी 3 घंटे की होती है। Have हम्म। you tried studying for 45 minutes, take a 15-minute break? Study for 45 minutes, take a 15 minutes break. Because overload हो रहा है। क्योंकि सर आपने, फीलिंग नहीं आती है जैसे जब पोमोडोरो टेक्निक होती है ना, मैंने देखा था तो 2 ढाई घंटे पढ़ के तो ऐसा लगता है कि अभी 10 15 मिनट ही हुए हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि 2 घंटे जब तक मतलब बैठ के वो ना करूँ तो मतलब शायद मतलब हैबिट्स हो गई या फिर क्या है, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा है। ये आपको प्लान भी करना पड़ेगा। जब आपको ऐसा लगता है तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इट्स ऑल्सो लाइक ईटिंग, क्योंकि मैंने 3 टाइम खाना नहीं खाया, अगर मैं नेक्स्ट डे तीनों टाइम का खाना एक ही टाइम खाने की कोशिश करूंगा तो वो पचने नहीं वाला है। तो जब मालूम है एंड में मैं 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पढ़ाई करके मेरे को ये रियलाइज होता है कि मैं
दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है और कितनी पढ़ाई करी वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पहले से जब से टर्म स्टार्ट होता है, जब से एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। क्या हम वो करते हैं कि वेट करते हैं एंड टाइम के लिए, कि जब एंड टाइम पे होगा तब प्लान करके कर लेंगे, राइट? सो यस सर। अमूमन ये होता है कि पहले की प्लानिंग नहीं होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। सर जैसे पास्ट की कुछ अच्छी हैबिट्स अगर छूट गई हो, जैसे ब्रेक लग गया हो, और उनको दोबारा अडॉप्ट कर कैसे करें? पेशेंस, लाइक आई सेड, पेशेंस, अपने आप से पेशेंस रखना है, फिर से स्टार्ट करना है। आपको मालूम है पास्ट की अच्छी हैबिट्स चली गई, और आपको आई एम श्योर अगर आपको ये मालूम है कि पास्ट की अच्छी हैबिट्स चली गई, तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो कौन सी हैबिट्स है जो चली गई हैं। तो लिखो, वापस अपना हैबिट ट्रैकर बनाओ, लिखो कि ये हैबिट्स मेरे को वापस लानी है। लिखो 1 से 30 जनवरी मंथ का 21 डे का चैलेंज, और देखो आप कितने दिन वो हैबिट को वापस अपने आप लाइफ में ला सकते हो। सर जैसे पहले मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ के मेडिटेशन करती थी, लेकिन अब नहीं करती। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि पहले कितनी अच्छी हैबिट थी, लेकिन जब वो हैबिट मैं अप्लाई करती थी, लेकिन मैंने फिर अपने आप को कभी प्रेज ही नहीं किया कि मैं 4 बजे उठ के मेडिटेशन करती थी। बट अब रिग्रेट होता है। हाँ, क्योंकि जब हम कर रहे हैं तब लगता है कि ये तो करना ही है, ये तो नेचुरल है। अब जब वो हैबिट अपनी लाइफ से चली गई, तो उसका महत्व और उसका इम्पोर्टेंस हमको मालूम चलता है, राइट? राइट, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। मेरे को एक मैसेज आया है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च अ मेडिटेशन कोर्स फॉर एनलाइटनमेंट पार्टिसिपेंट्स टू लर्न कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस हियर। तो आप डेफिनेटली वो मेडिटेशन कोर्स आपके कॉलेज से, या जो ये स्पिरिचुअल सेल है आपके कॉलेज का, ज्वाइन करिएगा और सीखिएगा। एंड हाफ योर प्रॉब्लम्स, मेमोरी कैसे बढ़नी है, कंसंट्रेशन कैसे आना है, सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। नाउ आई थिंक द फोकस शुड बी, नया साल आ रहा है तो मैं कैसे प्लान करूं, एंड बेसिक प्लानिंग के स्टार्ट करो। टेक अ 21 डे चैलेंज फॉर टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू अडेप्ट इन योर लाइफ। ट्रैक करो उसको, तो आपको कंसिस्टेंसी का भी मालूम चल जाएगा। हैबिट ट्रैकर ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो, एक प्रिंट आउट लो और आप अपनी हैबिट्स एक तरफ लिखो और ट्रैक करो क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। All right, thank you very हेलो। much. Very much. I think our host is here to say things. But सर before we, सर yes, Yogesh, I think someone said something. Acha, anyways, I think we'll take questions later. But before we end, I have these cards, and we call these blessing cards or magic cards. And I want to leave everyone with a powerful message. So I'm just going to randomly pick up a card, and we'll see what comes out in the card. And I always believe जो कार्ड आता है वो आप सबके लिए बहुत नए साल का जैसे एक लक्ष्य बन सकता है. So I'm just going to randomly pick out a card and see which card comes to all of you. Amazing. So I've got this card which says, "You are all mature souls who are going to use challenging situations as doorways to make a more royal version of yourself." I think this is absolutely amazing. आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या इसको लिख के रख सकते हो. See, this is so appropriate for today's session. एक leaving our session with something absolutely amazing कि we are all mature people and we are going to trust ourselves, our maturity, और जो भी challenging situation आएगी उसको पार करने के लिए बहुत अच्छी तरह से पार करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू टैकल दो सिचुएशंस एज डोरवेज. मतलब ये चैलेंज जो आ रहा है, लाइक फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस जो बोलते हैं. फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ये कहावत तो सुनी होगी आपने. सो यू आर गोइंग टू ट्रस्ट योरसेल्फ दैट यू आर मैच्योर सोल्स एंड हु यूज चैलेंजिंग सिचुएशंस तो आप लोगों ने बहुत सुनी है आज के सेशन में, as doorways to a more royal version of yourself. And I think with royalty comes realizing your full potential as well. Thank you very much. Have a very good evening. Have a very good weekend. And best of luck to the new year that is to come. And wishing you all a very happy new year in advance. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन. आज के सेशन में आपने हमें बताया पावर ऑफ डिटर्मिनेशन और कैसे हम अपने शेड्यूल को प्लान कर सकते हैं. किसी भी एक्शन को रेगुलर 21 डेज तक करने पर वो हमारी हैबिट बन जाती है. इसीलिए हमें एक्शंस ऐसे लेने चाहिए जो हैबिट में डेवलप होकर हमारी लाइफ में हमारी हेल्प कर सके.